Okay, since many of you are here, I'm starting. What we have discussed in previous lecture. From teaching aid method. Yes, we were discussing the teaching aid, and we just discussed the audio aids. And we have just discussed the audio aids. वहाँ पे we have discussed the radio, the tape recorder, the gramophone. So how this audio teaching aid are important in science teaching? We have discussed how they are educational in their purpose, है ना? So how they are important for the science teaching. Ma'am, they help us in enhancing our knowledge and knowing about the current issues. Okay, they know the current issues पता चलते हैं, then they enhance the knowledge. Then what other things? Can we say problem solving skill is increasing because of this? Yes, ma'am. Yes. In what way? Ma'am, because students will get aware Yes. about the issues and they can think upon them. Yes, So that, since they are aware about the issues, they will try to separate the different kind of analysis, and they will try to make it simple way and फिर understand करेंगे पूरा concept easily. So that's how they are going for the problem solving. And the curiosity is also developing in students because of this listening to different kinds of. We have talked about the languages also, that languages could also be in skill of language is also increasing because of this. And language is also part of science, because without language we cannot say that we can teach the science. So it is also important. So it is very important in certain way. And today we will discuss the visual aids. ये जैसे हमने audio aids discuss किए, visual aids का step ahead थोड़े ज़्यादा important है. जैसे audio aid के कुछ disadvantages थे, कभी कभी vague हो सकता है कोई concept, and concentration student का break हो सकता है. तो यहाँ पे थोड़ा more, because it is more interesting, क्योंकि यहाँ पे students are using their visual sense. So visual aids थोड़े और better way में they can engulf. Okay, so let me share my screen. Okay, there are certain visual aids like chalkboard, that तुम लोगों ने तो बहुत सुनी रखा होगा, that plastic writing board, then bulletin board, charts, diagrams, sketches, models, the projects like motion pictures, film strips, light projectors, that we all discuss them in little brief. Firstly, if we talk about the chalkboard, it is a very ancient teaching method. Like we are using this method since ages, but it is very effective when it comes to the science, because when teacher explaining the things, while explaining अगर teacher start writing the important points on the board, it will definitely grab the student attention towards the whatever point the teacher is teaching. So chalkboard is very crucial method. We cannot ignore it, चाहे मतलब it is very old method, but still it is very important. Most valuable device for making instruction concrete and comprehensive, because कहीं ना कहीं student visualize कर सकते हैं, because it's not that only writing teacher is writing on the board. टीचर राइटिंग के अलावा और क्या क्या चीजें करता है बोर्ड पे, ड्राइंग करता है ना, तो डायग्राम्स, द इंफॉर्मेशन जो भी ड्रॉ करके बता सकते हैं. तो इट मेक्स इंस्ट्रक्शन वेरी कॉन्क्रीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो. ऐसा नहीं कि पॉइंट्स टीचर लिखे जा रहा है तो एकदम ब्रॉड वे में, कहीं ना कहीं थोड़े शॉर्ट बना के लिख के important instruction teacher provides on the board. Various type of chalkboards, like well, there are so many types of chalkboards, like wall पे जो basically you have seen that green board और black board जो तुम लोगों ने देखा होगा, जिसको different colors of chalk का use करके teacher draw करते हैं या फिर लिखते हैं. There is another type of board that you might have heard, that roll up boards. You have seen the roll up boards?
Yes, ma'am. दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर, क्योंकि अगर कोई Yes, ma'am. टफ डायग्राम होता है जो क्लास में उस पर्टिकुलर टाइम पे ड्रॉ करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो टीचर कैन यूज दिस काइंड ऑफ बोर्ड की पहले से प्रीवियसली डायग्राम ड्रॉ करके दे कैन टुक टू द क्लास एंड शो द पिक्चर्स एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. So basically what is the importance of this chalkboard is like it is firstly जो भी important points teacher write करेगा board पे, तो definitely it will attract the pupil and grab their attention for the important topics के लिए definitely it will grab the attention. Vague statements or concept can clear by sketches and diagram because maybe because of the explanation चाहे कितना अच्छा हो, but since if we जैसे तुम लोग को आज तक याद होगा कि स्कूल में कोई टीचर अच्छा डायग्राम और स्केचेस बनाता था, तो वो जो उन्होंने टॉपिक पढ़ाया है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहते हैं. इट कनेक्ट्स ओरल एंड विजुअल सेंसेशन विच इज हेल्पफुल फॉर लर्निंग. जैसे ईयर का भी यूज होता है एंड आईज का भी यूज होता है, बिकॉज सिंस इट इज अ विजुअल एड, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखाएंगे, डेफिनेटली टीचर विल डिस्कस समथिंग आफ्टर दैट. तो कहीं ना कहीं दोनों का यूज होगा, आंखों का एंड कानों का, दोनों का. तो इट इज सेंस multiple senses are using, so it is even better. It will enhance the process of learning. It breaks the monotony of narration while explaining the particular topic. जब teacher turns to write something on board, तो कहीं ना कहीं it just break the monotony of that particular narration. This aid is economical in the sense of time and money. Basically, yes, कि इट इज वेरी सिंपल. सिर्फ एक बोर्ड चाहिए, देन पर्टिकुलर चॉक्स चाहिए, इसके लिए ज्यादा कुछ मनी भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. एंड इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, कि कुछ ज्यादा मटेरियल बनाने की भी जरूरत नहीं है. तो इट इज वेरी इकोनॉमिकल. अभी इट इज नाइस मेथड, बट अगर उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. Like there is particular, there are particular steps or there are particular important points that need to be taken in consideration while using this chalkboard method. So firstly, the जो भी लिख रहे हैं, राइटिंग है जो टीचर की राइटिंग, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टूडेंट को देखने में अट्रैक्टिव लगे, उस तरह की राइटिंग टीचर को यूज करनी चाहिए. देन सेकंड इज यूनिफॉर्म राइटिंग. यू माइट हैव सीन कि कोई टीचर से टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है, तो वहां पे ना अच्छा नहीं, इट इज एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगेगा. तो यूनिफॉर्म राइटिंग शुड बी देयर. एंड जो भी लिख रहा है स्पेलिंग्स वगैरह करेक्ट होने चाहिए. ड्रॉइंग अगर कुछ ड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग अगर उतनी अच्छी नहीं है तो शुड यूज अनदर डिवाइस. अदरवाइज बहुत ही घटिया ड्राइंग भी नहीं करनी है. लाइक करेक्ट राइटिंग एंड करेक्ट ड्राइंग करनी है. अगर नहीं ठीक से हो रहा है तो टीचर शुड प्रैक्टिस all these things at home first and then apply on the classroom. Lengthy writing should be avoided. Definitely जो भी कुछ भी लिख रहा है बोर्ड पे, शॉर्ट पॉइंट बना के लिखना है. लेंथी लेंथी पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तो उस टाइम पे स्टूडेंट का ध्यान कहीं और चला जाएगा एंड पूरी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है. क्लीन द chalkboard after and before writing. Whenever you start writing on the chalkboard, मतलब I mean board, तो you just have to make sure कि वो भी बोर्ड पहले तो क्लीन होना चाहिए. whenever teacher enter in the classroom, पहला उसका ध्यान होना चाहिए कि बोर्ड क्लीन है कि नहीं. तो कल का कुछ लिखा हुआ है या प्रीवियसली कुछ भी तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आंखें तो सबकी गोइंग टू मूव हियर एंड देयर, तो वो दूसरे टॉपिक देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सोचने लगेंगे. तो फर्स्ट थिंग द टीचर हैव टू डू इज जस्ट क्लीन द बोर्ड whenever teacher entered in the classroom. And then after राइटिंग ऑन द चेक, वो जब बाहर जाए क्लास के बाद, तब भी उसको मेक श्योर करना है कि वो रब करके जाए. इट इज बेसिक मैनर्स होते हैं. टीचर को इस तरह के मैनर्स डेवलप करने अपने के. खुद आए हैं तो पहले वो अगर लिखा हुआ है तो दे शुड रब द बोर्ड, एंड इफ दे आर गोइंग आउट ऑफ द क्लास दे हैव टू जस्ट क्लीन बोर्ड अगेन. Then yes, discipline guard करनी है while writing on the board, because that the nuisance can happen when कुछ लंबा लंबा बोर्ड पे टीचर इज राइटिंग एट दैट टाइम. पर्टिकुलर स्टूडेंट्स अगर उनको दिख नहीं रहा है या फिर ऐसा कुछ मस्ती सूझ रही है, तो वहां पे क्लास का डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो सकता है. तो ऐसे कॉन्स्टेंटली बोलते बोलते बोर्ड पे नहीं लिखना है. ऐसे थोड़ा टर्न होके राइट करके या फिर थोड़ा सा आंखें थोड़ा आईज आई कांटेक्ट रखना है स्टूडेंट के साथ, ताकि कहीं पे भी इनडिसिप्लिन ना हो.
टीचर शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ स्टूडेंट व्हाइल राइटिंग ऑन द बोर्ड। ऐसे कुछ कोने में कुछ स्टूडेंट बैठते हैं जिनको ना दिखे, तो वो सब ध्यान रखना है कि एडजस्ट ऐसे करना है बोर्ड की सारे स्टूडेंट को दिखे, है नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऐसे थोड़ा मूव कर देना है, या फिर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उनको किस किस वे में दिखेगा उसका ध्यान रखना है। ठीक है। टीचर शुड प्रैक्टिस टू राइट एंड ड्रॉ रैपिडली। हाँ, ये भी है कि अच्छी राइटिंग नीट एंड क्लीन तो करनी है, बट रैपिड राइटिंग करनी है, बिकॉज रैपिडली नहीं लिखेंगे, टाइम लगा के लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल डिस्टर्ब द क्लास, बिकॉज टीचर इज कंज्यूमिंग मोर टाइम, तो वहाँ पे स्टूडेंट को न्यूसेंस क्रिएट करने का टाइम मिल जाएगा वहाँ पे। So this is how you can make your chalkboard skills a method or aid effective. So this is all about the chalkboard method. Like, there are certain other visual aids like chart, diagrams, sketches. They are also very important while we come to the we're talking about the visual aids, because ये सारी चीजें नहीं होती जो टीचर बोर्ड पे लिख सके या फिर ड्रॉ कर सके, क्योंकि देर आर सो मैनी पिक्चर्स जो और अट्रैक्टिव वे में पूरा पेंट्स के फॉर्म में होते हैं, तो उनको अगर दिखाना है तो दूसरे चार्ट्स एंड स्केचेस का यूज करना पड़ेगा। तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उनको भी थोड़ा ऐसे होता है कि दे आर लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि इफ यू हैव सीन दैट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं या फिर कुछ मशीनरीज होती हैं, दे वहां पे एक चार्ट्स वगैरह में प्रॉपर लॉजिकल वे में दिखाते हैं, तो दे आर मोर इम्पैक्टफुल ड्यूरिंग द क्लास। एंड कहीं कहीं पे कुछ समराइजेशन भी टॉपिक्स भी होते हैं जो चार्ट्स पे ऑलरेडी ड्रॉ किए होते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। देन जब भी ऐसे कुछ अट्रैक्टिव चीज लेके जाते हैं क्लासरूम में, तो it seeks the interest and curiosity of the student, and they observe this kind of things, so critical observation is also enhancing. Okay, तो how इसको भी कैसे how you can use this kind of aids effectively? तो firstly, according to interest of student, you have to use this aids, and जो भी charts वगैरह लेके जा रहे हो in the classroom should be simple and comprehensive. एकदम देखने से पता ही ना चले ऐसा नहीं होना चाहिए। It should, कि अगर हार्ट का डायग्राम है तो it should simple, कि ऐसा कुछ समझ में ही ना आए कि कौन सा डायग्राम पर लेबलिंग भी प्रॉपर होना चाहिए कि दिख सके प्रॉपरली। Then proper space between diagrams and pictures, कैसे नहीं कि एकदम without spacing the bunches of diagram. Then it should be relevant to the content, जो भी content topic पढ़ा रहे हैं उसके relevant charts वगैरह लेके जाने चाहिए, and exaggeration नहीं होना चाहिए in the terms of like जो भी image है वो इस तरह की तो नहीं होनी चाहिए definitely, कि जो actual में हो ही ना, जैसे स्टमक का डायग्राम है या फिर किसी और मशीनरी का डायग्राम है, इट शुड बी इन रिलेवेंट वे, ऐसा एग्जैजरेशन फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, एंड ओवर यूज भी नहीं करना इन सब चीजों का। Okay, then coming to the models. Abhi we have done with the chalkboards, then we have done the charts, sketches. उससे एक बेटर चीज आई है, दिस इज मॉडल। लाइक मॉडल्स आप लोगों को याद रहते हैं हमेशा, इफ यू हैव सीन दैट वोल्केनो मॉडल जो सबको याद होगा, देन इफ देयर इज इन schools digestive system models होते हैं, then the kidney models होते हैं, then there are other models regarding the atoms. देन एनवायरमेंट के रिलेटेड कुछ मॉडल्स होते हैं, दे ऑल आर वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्पैक्टफुल। मॉडल के बेसिकली तीन कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट इज स्केल मॉडल, सेकंड इज वर्किंग मॉडल, एंड थर्ड इज सेक्शनल टाइप ऑफ मॉडल। तो स्केल मॉडल में आउटलाइन जो भी ड्रॉ करके जनरली दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन कि कोई चीज का आउटलाइन ड्रॉ करके उसको अच्छे से कलर वाला बना के इन फॉर्म ऑफ मॉडल प्रेजेंट कर देते हैं, कुछ थोड़ा थर्मोकॉल वगैरह यूज करके। तो दे आर स्केल मॉडल जनरली, कुछ जैसे कार का पिक्चर है फॉर एग्जाम्पल, तो उस प्रकार से कार कैसा दिखता है वैसा थर्मोकॉल शीट काट लिया एंड इसको चिपका दिया एंड बोल दिया कि दिस इज मॉडल, तो उसको स्केल मॉडल बोलते हैं, जिससे बेसिकली उसका शेप्स एंड डिजाइन पता चले।
सेकेंड इज वर्किंग मॉडल। यहाँ पे द मॉडल इज बेसिकली वर्किंग, जैसे कुछ लाइट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं या कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं कि पूरा मॉडल वर्किंग जोन में लगे। जैसे यू माइट हैव सीन द वेरी फेमस द सोलर सिस्टम मॉडल, जैसे उसमें पूरे दैट द सन इज इन मिडल एंड जो भी सारे प्लैनेट्स है वो तुम्हें बाउंड्रीज में दिखेंगे, एंड नो उसको स्विच विच कुछ ऑन करके यू कैन एक्चुअली सी कि सारे मॉडल जो भी प्लैनेट्स है कैसे मूव करते हैं अराउंड द सन। देन कमिंग टू द सेक्शनल टाइप ऑफ मॉडल, ये मॉडल्स में क्या होता है कि पूरा सेक्शनल पार्ट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सीन द मॉडल ऑफ स्किन लेयर, जहाँ पे हमारी जो स्किन है उसके जो भी लेयर्स हैं वो एक सेक्शन प्रॉपर फॉर्म में ना कि ये सेक्शन है स्किन का, ये सेक्शन उस फॉर्म में दिखाया जाता है। इवन वो मॉडल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्ट्स अलग हुए एंड यू हैव टू गो एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो उस प्रकार से सेक्शन वाइज नो दो जो भी मॉडल के अंदर यूज की गई चीजें कैन टुक अपार्ट एंड फिर से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सेक्शन टाइप्स ऑफ मॉडल भी होते हैं। कमिंग टू द इम्पोर्टेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू नो रियल में वो चीज कैसी दिखती है, मॉडल कैसे दिखते हैं वो पता चलता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि यू नो possibility of having enlarged or reduced scale model to help close examination। कोई ऐसी चीज होती है साइंस में जो बहुत छोटी है, we cannot see it with the naked eyes, तो उसको हमें दिखाना है तो डेफिनेटली उसका एनलार्ज वर्जन मॉडल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। या फिर कुछ बहुत ही बड़ा यू नो कोई स्पेसशिप जैसी कोई चीज है जो बहुत बड़ी है एंड वी कैन नॉट लाइक स्पेस है हमारा, तो वो भी बहुत बड़ा है तो वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आईज, तो उसको भी मॉडल फॉर्म में दिखा सकते हैं। द इकोसिस्टम वाला एक मॉडल आता है, द चेन्स होते हैं, क्या वेव्स होते हैं उसके अंदर, तो वो वी कैन नॉट सी कि कहाँ कौन से जगह पे क्या हो रहा है, तो उसका हम प्रॉपर एक मॉडल बना सकते हैं। द मॉडल्स कैन शो द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल, तो नो दोनों चीज को सेटिस्फाई करता है। द मॉडल कैन मोटिवेट इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। See, since there are so many disadvantages also, because since मॉडल्स बड़े होते हैं तो उसको प्लेस करने के लिए जगह चाहिए क्लासरूम्स वगैरह में, ठीक है, तो वो साइज के लिए साइज के हिसाब से दिक्कत है। एंड देन कमिंग टू द सेकंड पार्ट इज लाइक दे आर फ्रजाइल, वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, सो पोर्टेबल भी नहीं है, तो ऑल द टाइम हम हर चीज के लिए मॉडल यूज भी नहीं कर सकते। थर्ड इज दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो बेसिकली जितने भी मेथड्स है एड्स है वी कैन नॉट यूज देम फॉर द ईच एंड एवरी टॉपिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सी अवर टॉपिक एंड रिगार्डिंग जो भी उसके सूट होता है, जो बेस्ट पर्टिकुलर मेथड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑल्सो, जो टाइम है सिचुएशन वो भी देखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू यू नो यूज दैट एनी काइंड ऑफ एड। ओके, सो कमिंग टू द अदर विजुअल एड्स, जो हमने चॉक बोर्ड बोर्ड बताया ना, तो उसके अलावा जैसे बोर्ड कैटेगरी में है, एक बुलेटिन बोर्ड है, देन मैग्नेटिक बोर्ड है एंड फ्लैनल बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड यू माइट हैव हर्ड है ना, how you can use a bulletin board in the for the science teaching। you have seen bulletin boards है ना। यस मैम। हम्म। मैम उसमें कलरफुल ये चार्ट हम अलग अलग साइज के चिपकाते हैं एंड इम्पोर्टेंट यस, नोट्स लिखते हैं सो दैट वो फोकस पॉइंट रहे उसमें दिखे यस, बच्चों को क्लियरली। यस, मे बी आउटसाइड द क्लास भी लगा सकते हैं फॉर द यस मैम। इंफॉर्मेशन, है ना, तो उसपे उसके लिए रूटीन रख सकते हैं। बेसिकली हाउ वी विल यूज द बुलेटिन बोर्ड, लाइक हम उसको रेगुलर बेसिस पे उसका एक रूटीन बना सकते हैं जहाँ पे वी कैन मेक द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिनको ये चार्ज दे सकते हैं दैट यू हैव टू यू नो टेक द चार्ज ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जो भी उसमें लगाया जाएगा। दे कैन रोज का एक अलग टॉपिक बना सकते हैं जिसके बारे में वो लोग उस दिन इंफॉर्मेशन देंगे। ये साइंस के रिगार्डिंग किसी ने कुछ लिखा है तो वो वहां पे चिपका सकते हैं उसका नाम लिख के कि ये दिस काइंड ऑफ स्टफ इज डन बाय दिस पर्सन, तो उससे लो स्टूडेंट का यू नो
इंटरेक्शन होगा फर्स्टली, एंड उनका नाम आएगा वहां पे कि चलो ये मैंने किया है, उनको ऐसे तो फिर दूसरे स्टूडेंट भी मोटिवेट होंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है बोर्ड, मतलब जितने भी बोर्ड है उसमें से बुलेटिन बोर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग है। उससे उनके स्किल्स वगैरह बढ़ते हैं। यू कैन बेसिकली इसके बेस पे प्राइज भी दे सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वीक में अगर किसी का ज्यादा अच्छा बुलेटिन बोर्ड प्रेजेंटेशन था तो उसको उस हिसाब से प्राइज दे सकते हैं छोटा मोटा। तो काफी इंटरेस्टिंग एंड क्यूरियस पार्ट हो जाएगा। कमिंग टू द फ्लैनल बोर्ड, यू हैव सीन द फ्लैनल बोर्ड। बेसिकली तुम लोगों ने वो पेन्स हम लगा के नहीं कुछ चिपकाते हैं बोर्ड पे, राइटिंग नहीं करते इस बोर्ड पे, छोटे छोटे नोट्स चिपका सकते हैं या फिर पिन लगा के दे सकते हैं। नोटिस बोर्ड देखा होगा ना उस प्रकार से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्लैनल बोर्ड, जहाँ पे मटेरियल इजीली चिपक जाते हैं। तो ये इन केस ऑफ जैसे कि कुछ एनिमल्स दिखाने हैं, प्लांट्स दिखाने हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ दिखानी है, तो छोटे छोटे चिप्स वगैरह लेकर के फ्लैश कार्ड जो भी तुम लोग यूज करते हो उसको वहां पे चिपका सकते हो पर्टिकुलर बोर्ड पे। तो वहां पे इजीली स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे। इवन गेम्स भी खेल सकते हैं फ्लैनल बोर्ड पे रिगार्डिंग दिस, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड। तो दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग बोर्ड। मैग्नेटिक बोर्ड्स भी होते हैं जहाँ पे जो चिपकाना है दैट विल बी मेड अप ऑफ मैग्नेट। ये मैं दिखाती हूँ तुमको। ये है जो ये लाइंस वगैरह है ना, द लैंड एनिमल, वाटर एनिमल, दिस इज अ फ्लैनल बोर्ड। एंड उस ठीक है, उसके बाजू में है दैट इज बुलेटिन बोर्ड बेसिकली, लेकिन बुलेटिन बोर्ड अलग हर जगह अलग अलग दिख सकता है। ये थोड़ा फॉर्मल भी बना सकते हैं, थोड़ा नॉन फॉर्मल भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, देयर आर अदर विजुअल स्टफ्स लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये तुम लोगों ने देख रहा होगा जहाँ पे स्क्रीन होती है एंड देन प्रोजेक्टर होता है, जो भी स्लाइड्स वगैरह या प्रेजेंटेशंस टीचर्स करते हैं, ठीक है, और इन स्कूल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू, कहीं ना कहीं आईसीटी यूज हो रही है, ब्लेंडेड लर्निंग जहाँ पे होगी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफ्स होते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम कुछ भी दिखा सकते हैं, लाइक मूवीज वगैरह भी क्लास में दिखा सकते हैं, फोटोज भी दिखा सकते हैं। देन ये जो सेकंड है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, उसमें सिर्फ फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं। दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोजेक्टर बट सिर्फ उसमें फोटोग्राफ्स होती है, फिल्म्स ऑफ फोटोग्राफ्स होती है। एंड माइक्रो प्रोजेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रोस्कोपिक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी इंसेक्ट वगैरह है, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनको दिखाने के लिए वी कैन यूज कि वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है, अगर वो छोटा सा कुछ इंसेक्ट है उस पर डालो तो वो मैग्नीफाई करके प्रोजेक्टर पे दिखाएगा। तो दिस इज अनदर important projector for the science class. Yes, this is another bulletin board. Yes, so we have discussed the all visual aids. Okay, and now we'll come to the audio visual aids. See, this audio visual aids में we have benefits of both the senses, like we can hear also, we can see also, तो ज्यादा multiple senses use हो रहा है, तो it is more effective than अभी जो हमने discuss की उनसे, ठीक है। It provide better impact compared to the audio and visual aids. तो ये कैसे टाइप के होंगे, जहाँ पे जनरली मूवीज दिखाते हैं, देन डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते हैं, देन फिल्म्स क्लिप्स दिखाते हैं, जो भी छोटे मोटे, दे ऑल कम्स कमिंग टू द ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। तो देर आर सो मेनी एजुकेशनल फिल्म, ये इसका कैटेगरी है ये ऑडियो विजुअल एड का, कि एजुकेशनल फिल्म्स होते हैं, सिनेमास होते हैं, जो पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स को दिखाने चाहिए। तुम लोगों को स्कूल्स में मूवीज वगैरह दिखाते थे व्हेन यू वर इन स्कूल? कोई याद है कि कोई मूवी देखा था? स्कूल्स वगैरह में गवर्नमेंट टीवीज भी देते हैं, कि वाई दे आर गिविंग टीवीज टू दी स्कूल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज पार्ट ऑफ टीचिंग। कोई मूवी याद है जो स्कूल में देखा था? मैम हमको थिएटर में लेके गए थे, स्कूल में ओके, नहीं दिखाया था। यस अच्छा, मैम। हाँ हाँ, मे बी उनको और ब्रॉडवे में या फिर मे बी स्कूल में
टीवी का, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, तो एक दो टीवी खर्च यस करने मैम, से पूरा अच्छा कि हॉल ही बुक कर लिया था। हाँ, तो दैट इज बेटर। कौन यस सा मूवी दिखाया था? मैम, वो तो उस टाइम पे बॉडीगार्ड रिलीज हुई थी तो वो ओके, दिखाया था। अच्छा वो तो उन्होंने एंटरटेन के लेने के लिए, यस, ओके। फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, यस मैम। ओके, तो अभी वी हैव टू डिस्कस द बंच ऑफ साइंटिफिक मूवीज, तो किसी के पास इफ यू हैव आइडियाज रिगार्डिंग एनी movie regarding any science subject, so you can definitely share. Three Idiots, ma'am. Okay, Three Idiots, fine. बिकॉज जब भी मूवी में किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग मूवी होता है, तो उसमें उसकी पूरी जर्नी दिखाता है, या फिर वो पर्टिकुलर उसका जो साइंटिस्ट वगैरह है जिसने वो कुछ इन्वेंट किया है, तो उसकी जर्नी दिखाता है। तो इनिशियल पार्ट से लेके उनको पूरा प्रोसेस समझ आता है जब हम मूवी देखते हैं, या किसी फिनोमेना के रिगार्डिंग मूवी है, जैसे कि स्टॉर्म्स के रिगार्डिंग, साइक्लोन्स के रिगार्डिंग मूवी होते हैं, तो हमें वहां पे ये पता चलता है कि हाउ टू इससे प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे स्टार्ट होता है। इफ यू आर सीइंग दैट मूवी इवोल्यूशन, किसी बहुत काफी पुराना मूवी है, इट्स अ हॉलीवुड मूवी, किसी ने देखा यस है मैम। इवोल्यूशन? यस, दैट इज लाइक, वो मूवी अगर इवोल्यूशन को समझना है ना, तो इफ यू वॉच दैट मूवी, तुमको पूरे तरीके से समझ आएगा कि हमारे खुद की अर्थ पे कैसे इवोल्यूशन हुआ था। लाइक उस मूवी में दिखाते हैं कि देयर इज अ मीटियोर विच इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ सरफेस, और बिफोर दैट दैट पर्टिकुलर मीटियोर पे कोई लाइफ नहीं था। बट जैसे ही वो मीटियोर अर्थ के बिकॉज थोड़ा फ्रिक्शन हुआ, तो उसकी वजह से देयर वाज अ हीट जनरेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर मीटियोर, तो जैसे ही वो अर्थ पे गिरा, तो उस पे धीरे धीरे कुछ ऐसे रिएक्शंस हुए जिससे लाइफ शुरू हो गई। तो जैसे हमारा अर्थ का खुद का इवोल्यूशन हुआ था, जैसे कि पहले छोटे छोटे एनिमल्स आए थे, कीड़े आए थे, मछलियां आई थी, या फिर उसके बाद छोटे मोटे कीड़े आए, फिर उसके बाद शुरुआत में तो डायनासोर्स वगैरह थे। तो जिस चेन में हमारे अर्थ में इवोल्यूशन हुआ था, उसी चेन में उस छोटे से वो मिट्योर बहुत बड़ा नहीं था, लाइक काफी छोटा था, एक छोटे से एरिया पे गिरा था, बट उस पे उसी प्रकार से इवोल्यूशन होता है, लाइक कीड़े वगैरह। तो उस मूवी में भी यही दिखाते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लेके जाते हैं इवोल्यूशन समझाने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस पे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहां पे इवोल्यूशन बहुत रैपिड था, कि एक एक दिन में सब इवोल्यूशन हो रहा था, स्पीड और टाइम बहुत जल्दी फास्ट था। तो कुछ एक ही हफ्ते के अंदर वहां पे डायनासोर्स आ गए, देन डायनासोर्स के बाद धीरे धीरे एप्स आना शुरू हो गए, बिकॉज यू इवोल्यूशन पूरा उसी वे में हो रहा था जैसा अर्थ पे हुआ था हमारे साथ। तो एप्स आए, फिर उसके बाद ह्यूमंस आने वाले होंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा डेंजरस हो गए वो लोग, तो देन वो मूवी में उनको कैसे खत्म करना है वो दिखाया। बट द होल जर्नी ऑफ इवोल्यूशन वहां पे दिखाया है, तो दैट इज पूरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को और डिटेल में समझ आता है। वो दे गो थ्रू दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देन अगर कोई मूवीज के छोड़ो, मे बी वी कैन टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्रीज, लाइक कल्पना चावला का डॉक्यूमेंट्री है, दे विल अंडरस्टैंड द होल कि कैसे पूरा स्पेस का रिलेटेड स्टफ वहां पे दिखाएंगे। कोई साइंटिस्ट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हैं, है ना। तो देर आर सो मेनी मूवीज, जैसे ये कुछ पोल्यूशन के रिगार्डिंग मूवी हो, तो उसमें हाउ वी आर क्रिएटिंग द पोल्यूशन, हाउ वी कैन फाइट विद द पोल्यूशन, वो पूरा प्रोसेस दे कैन अंडरस्टैंड। तो अगर किसी को याद है कि कोई इस तरह की साइंटिफिक मूवी है, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट या फिनोमेना है, इस साइक्लोन के रिगार्डिंग भी मूवीज होते हैं, तो यू कैन टेल राइट नाउ। मैम ऐसे साइंटिफिक मूवी तो नहीं, लेकिन हमें जब बीएससी कर रहे थे तो हमें दिखाई गई थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे ना, ओके, यस यस यस। तो हमें वो हम्म। दिखाई गई थी पूरी क्लास हाँ, तो उससे हाँ स्टूडेंट को काफी ऐसे किसी और का जर्नी देखेंगे तो उनको काफी मोटिवेशन भी मिलेगा। में। और मैम मैंने देखी थी पिछले साल एक मूवी द इमिटेशन गेम। वो ओके। एलन ट्यूरिंग की थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कंप्यूटर बनाया था, उस पे रिलेटेड थी पूरी। वो पहला कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही। नाइस, तो इस तरह के मूवीज हम स्कूल्स में भी दिखा सकते हैं, जैसे कि एक मूवी है एक डॉक्टर की मौत। बेसिकली उसमें ऐसा कोई मर नहीं जाता है, उसमें बेसिकली क्या, वो इंडियन, इट इज इंडियन मूवी,
तो उसमें जो वैक्सीन है लेप्रेसी की, वो इन्वेंट करी थी हमारे किसी एक्चुअल रियल स्टोरी है इंडिया के डॉक्टर ने। वो डॉक्टर बंगाल में था, तो उसने इन्वेंट करी थी, बट उसका क्रेडिट किसी और ने ही ले लिया। तो होल जर्नी शो दैट कैसे उसने बहुत मेहनत और स्ट्रगल करके वो वैक्सीन इन्वेंट की। और उसकी बिकॉज हम इंडियंस बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ फॉरेन का कोई मैगजीन से आया था उस टाइम पे, तो उसको पता नहीं था कि आई शुडंट शो दिस टू दिस पर्सन। उसे थोड़ा बहुत दिखाया था, वो उसने कुछ बहाना करके दैट गर्ल स्टोलन ऑल द थ्योरीज एंड अपने देश में लेके अपने साइंटिस्ट को देके उसने अपने नाम पे वो वैक्सीन करवा ली। और जो भी मेहनत की थी वो दिस पर्सन, जो भी डॉक्टर था, आई फॉरगॉट द नेम, ये वो काफी पुरानी है, जस्ट शबाना आजमी इज इन दैट मूवी एंड दैट पंकज कपूर द फादर ऑफ शाहिद कपूर इज देयर इन दिस मूवी। बहुत दिस ये मूवी ने बहुत अवार्ड्स भी जीते बिकॉज ऑफ द बेस्ट एक्टिंग स्किल्स। एंड शायद तुम लोग को बाद में जब एकेडमिक राइटिंग का पेपर आएगा तो ये मूवी दिखाएंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज रिव्यूज करने के लिए, क्रिटिकल रिव्यूज देने के लिए। तो ये उसमें पूरी जर्नी के थ्रू हो सकता है कि हाउ टू ये वैक्सीन वगैरह इन्वेंट करते हैं, उसने कैसे इन्वेंट की, उसका एक प्रोसीजर होता है उसको अपना पेटेंट करवाने का। तो हाउ टू गो विद दिस पेटेंट, ऐसा नॉलेज भी मिल सकता है इससे। यस शोभिता, यू मैम वाज सेइंग अभी समथिंग। यस मैम मैम अभी लॉकडाउन जब लगा था तभी एक मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, लाइक ये 2020 में कंटेजियन। जो भी हुआ, यस। हाँ या कंटेजियम, वेरी करेक्ट। तो इसमें जो भी कुछ दिखाया है ना, वो एग्जैक्टली exactly अभी हो रहा है। तो एट दैट टाइम ओके, द मूवी वॉज फ्लॉप। यस मैम, जब ये रिलीज हुई थी। व्हाट इज नेम ऑफ दिस मूवी? रिक्वेस्ट, कंटेजियस? कंटेजियन, कंटेजियन या कंटेजियन, कंटेजियम। CONTAGION। हाँ, ओके, यस मैम। ओके ओके, हॉलीवुड मूवी है? Yeah, यस। the story was हॉलीवुड है मैम। यस मैम, इसमें भी सेम ओके। टू सेम पूरा वायरस के ऊपर ही है कि जस्ट छूने से स्प्रेड हो जा रहा था एंड सो हाँ मेनी हाँ डेथ्स वर देयर। एंड इसमें जो प्रोटैगनिस्ट था मेन, उसकी भी जो हाँ। वाइफ होती है, लास्ट में उसकी और डेथ हो मैम जाती मूवी है। में भी जो या वायरस तो का ओरिजिन है वो चाइना से ही है। ओके। यस मैम, दोस्त देयर वाज सो मच सिमिलैरिटी कि इतना ज्यादा वो लोग कैसे हाई लेवल का उन लोगों ने सोच लिया था पहले ही। तो या मैम। ओके, नाइस नाइस। और कोई थॉट्स है रिगार्डिंग मूवीज ऑफ दिस काइंड ऑफ जॉनरा? You might have seen the robotic movie जिसमें रोबोट्स होते हैं। बिकॉज वो तो है ही डेफिनेटली, रोबोट आर एग्जिस्टिंग इन बेसिकली इंडिया में हम नहीं यूज करते, बट दे आर देयर इन जापान एंड डेवलप्ड कंट्रीज में। तो उनके रिगार्डिंग एडवांस बहुत मूवी बने कि अगर चलता रहा, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ जाएगा तो देयर विल बी टाइम केम दैट जहाँ पे सब रोबोट्स राज कर रहे होंगे हमारे पूरे अर्थ पे। मेकिंग ऑफ रोबोट, जिसने फर्स्ट रोबोट बनाया, रिगार्डिंग दैट एंड सारी इंफॉर्मेशन कि कैसे मशीन्स वर्क करते हैं। दैट दैट ये कुछ आयरन मैन का सीरीज है, दैट टर्मिनेटर का कुछ मूवीज है, उस तरह की सीरीज है जहाँ पे पूरा मशीन की वर्किंग दिखाता है कि इतना एडवांस लेवल पे मशीन्स कैन वर्क। किसी ने बनाया भी था बीच में, रियल में एक सूट बनाया था जैसा आयरन मैन में दिखाया है उस तरह का, बट उतना, खैर बस वो थोड़ी देर तक ही उड़ पाया था, उतना उसका पॉसिबल नहीं हुआ था। बट इफ यू हैव सीन इन न्यूज, तो इस तरह से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बना रहेगा दैट करंट में क्या होगा, देन इन फ्यूचर क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है व्हाट्सएवर वी आर डूइंग राइट नाउ उसके। So basically, this educational films and cinema will definitely give the general informations तो देती हैं, but industrial films can give details of industrial plants, machines and their operations। क्योंकि अगर अगर तुमने इंडस्ट्री की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी है, यू माइट हैव सीन द कुछ चैनल्स आते हैं टीवी पे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखाते हैं, देन कोई
पर्टिकुलर कंपनी है तो उसका इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है, कि चॉकलेट है तो चॉकलेट कैसे बन के वापस आता है, देन कोल्ड ड्रिंक्स है तो उनको उनकी पूरी जर्नी दिखाते हैं, कोई भी चीज कैसे बनती है तो वो पूरे प्लांट्स मशीन्स वगैरह दिखाते हैं। तो वहां से डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी स्टूडेंट्स को। डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट भी कुछ वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग, तो इन्वेंशंस एंड साइंटिस्ट के रिगार्डिंग मूवीज वगैरह छोटे छोटे फिल्म्स बनाते हैं। And news on TV channels give current affair knowledge definitely because it's टीवी सिनेमा की बात करें तो न्यूज वगैरह है जो करंट अफेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो we can say that it is very effective and highlighting the reality because real basis पे होता है, and they are very attractive because movies और documentaries का नाम सुनते ही students will just feel happiness, it will definitely grab their attention. सो टेलीविजन, यस टेलीविजन के तो है कि मतलब ये जो भी चीज है यू कैन शो दैट टेलीविजन या फिर सिनेमा में ले जाके दिखा सकते हैं, प्रोजेक्टर पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। दिस ऑल आर दी ऑडियो विजुअल एड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव। सो उसके ये सब ऑडियो विजुअल, देन ऑडियो विजुअल, उसके बाद है देयर आर एक्टिविटी एड्स, जहाँ पे बेसिकली ऑडियो विजुअल सब तो होता ही है बट वहाँ यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स आर टोटली इन्वॉल्व, तो ये और बेटर है कि फॉर एग्जांपल साइंस फेयर्स है जहाँ पे मॉडल्स वगैरह स्टूडेंट्स लेके जाते हैं, देन एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे दे एक्सप्लेन व्हाटसोएवर दे हैव डन, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, उनको पार्टिसिपेशन मिलके सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं, देन दे आर गिविंग अवार्ड, सो दे आर वेरी हैप्पीली एंड एंजॉय करते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेशन करना। साइंस म्यूजियम जहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स को विजिट करवाते हैं तो वहां से भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग यहाँ पे किसी ने कोई म्यूजियम देखा है, कुछ अच्छा म्यूजियम है, किसी को नाम याद है या किसी ने पहले म्यूजियम कोई गया हो जो बहुत अच्छा है? इफ यू रिमेम्बर, म्यूजियम में तो बहुत तरह की चीजें होती है, लाइक पुराने स्टफ्स होते हैं, देन फॉसिल्स वगैरह होते हैं। यस मैम, वो जूलॉजी का और बर्ड्स का पूरे भी सब पार्क होता है, भी यहाँ होते हैं, कमाटी हाँ। बाग में है ना हाँ, बरोबर। ये कमाटी का तो वहाँ पे पार्क भी है बाजू में, देन यू कैन गो टू दिस लॉट्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पे क्या ऐड करना रह गया, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन में भी लेके जा सकते हैं स्टूडेंट्स को। देन साइंस क्लब ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को मेंबर बना देना है, एंड एक्टिव सुपरवाइजेशन बाय दिस टीचर, एंड देयर विल बी द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विल हैंडल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द स्कूल्स और पर्टिकुलर क्लास रिगार्डिंग साइंस। वो एक्टिविटी कोई भी रख सकते हैं, इलोक्यूशन रख सकते हैं, डिबेट्स रख सकते हैं, देन कोई भी कंपटीशन रख सकते हैं, पेंटिंग कंपटीशन रिगार्डिंग साइंस, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। तो वो साइंस क्लब को ही काम करना है तो उनका पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। देन स्कूल को ट्रिप पे लेके जा सकते हैं छोटे छोटे, जैसे कि ट्रिप टू द म्यूजियम, देन ट्रिप टू द एनी काइंड ऑफ जूलॉजिकल पार्क, या फिर कोई हेरिटेज है जो किसी साइंटिस्ट का है रिगार्डिंग साइंस है तो वहां पे लेके जा सकते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स को एंजॉयमेंट होगी वहां पे। देन कमिंग टू द वर्क, जो क्लासेस है नॉर्मल, उसमें भी छोटे छोटे एक्टिविटीज साइंस के इंक्लूड कर सकते हैं जिससे क्लास और इंटरेस्टिंग बन जाए। एंड स्पेशल स्पीकर प्रोग्राम भी डाल सकते हैं, जैसे गेस्ट लेक्चर होते हैं ना, वैसे किसी को बाहर से लाके रिगार्डिंग किसी साइंस के टॉपिक, या किसी साइंटिस्ट, छोटे मोटे साइंटिस्ट होते हैं वो अगर फ्री है तो उनको बुला के यू कैन नो क्लास को और इंटरेक्टिव बना सकते हो। देन साइंस क्लब दोबारा से आ गया। So we have finished with all the kind of aids we have discussed कि वो कैसे यूज करना है effectively and how they important, and सबके कहीं ना कहीं कुछ benefits है, सबके कुछ disadvantages है, कहीं ना कहीं lacking है सब में, but हमको according to situation, according to topic, according to interest of student, availability कितनी है, फैसिलिटी कितनी है, टीचर कैन यूज मल्टीपल रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं, सबका कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन करके भी यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि इसके लिए यही यूज करना है, यू कैन यूज एनीथिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टाइम,
नो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी जो भी मनी वगैरह है उसके रिगार्डिंग भी यू कैन यूज इन द क्लासरूम एंड मेक इट बेटर. सो वी आर डन विद अवर सिलेबस एंड अभी हम तुम लोग को कुछ भी डाउट है यू कैन टेल डेफिनेटली एनी टाइम you can call and or maybe we can have some meeting also online. Any doubt किसी को? ये सेकंड जो चैप्टर था वो बहुत भगा भगा के पढ़ाया था. आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट. ये तो काफी सिंपल सा है तो आई डोंट थिंक इसके लिए कोई वीडियो, बट सेकंड चैप्टर के लिए आई विल डेफिनेट सेकंड यूनिट के लिए आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो जहाँ पे हम सारे जितने पॉलिसीज एंड कमीशन है डिस्कस करूंगी उसमें मैं. Okay, ma'am. है ना? ओके. बाय एवरीवन एंड टेक केयर. बाय मैम, Thank you, टेक ma'am. केयर मैम. Bye, ma'am. बाय. मैम प्लीज ये आप पीपीटी शेयर कर दीजिए. हाँ डेफिनेटली. You can leave the class, okay? Huh?